Let's welcome CA Jagjit Singh. Jagjit sir, over to you. Thank you, Govind sir, for the wonderful, introduction. We have mentioned many things in the introduction part. So definitely, I will try to, जैसा आपने उसमें बोला, is a very professional. So definitely, I have to work like a professional. I'm professional, so I'm working day routine work in a professional manner. So now today I got the opportunity to present this topic, the professional persona. So let's before start this presentation, so सबसे पहले बात कर लेते हैं what is professional persona. So पहले सबसे पहले एक बार सबका धन्यवाद. So thank you everyone, all the dignitaries and the mentors of this program, and Govind Mishra ji, Jatin Nagpal ji, everyone, and all the respected participants जिन्होंने समय निकालकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, and today they are with us. So what is professional persona? Before start the presentation, the first slide of my presentation. Professional persona means the personality. Let's talk about the professional personality. एक ऐसा प्रोफेशनल पर्सन जिसको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत काम मेंटेन रखना, अपने आप को उसको हमेशा इम्प्रूव करना, and day routine में, and definitely he has to work hard, he has to update himself, because nowadays the law, the rules, procedures, act, everything is going to change, and side by side he has to update his, he has to update himself side by side, and the personality, he has to work on the personality. So that is why the professional persona can be complete. So very first slide, in the first slide, I will try to mention so many things. So what is professional persona? As you can see, in the picture, a young person, जो football के साथ like a student, just like a student, or we can say the below the age of the student, when he was playing with the football, उसको नहीं पता था कि आने वाले टाइम में उसे एक प्रोफेशनल बनना है. सो लाइफ किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस वे में वो नए नए पड़ाव में एंटर करती है, और एक नॉर्मल छोटा सा बच्चा जो पार्क में खेलने वाला, स्कूल में खेलने वाला, आने वाले टाइम में एक प्रोफेशनल बनता है. सो लाइफ में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे चेंजेस आते हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना होता है. ऑलवेज जो कुदरत किसी इंसान को देती है उसे एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि आने वाला समय जो है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है. सो बेहतरीन समय की तरफ चलते हुए उसे किस तरह इन पड़ाव में चलना होता है. सो लेट्स सी द प्रोफेशनल पर्सोना. हु इज अ प्रोफेशनल? I mentioned there one single, a very first point, any person. कोई भी इंसान अपनी लाइफ में प्रोफेशनल बन सकता है. तो सबसे पहले हम सभी के सभी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं. सो हमारा जो पहला स्टार्ट होता है वो बचपन से होता है. बचपन से फिर स्कूल की लाइफ स्टार्ट होती है, एंड आफ्टर द स्कूलिंग व्हेन वी जॉइन द कॉलेज, सो कॉलेज में हमारी स्टडी का जो लेवल है वो चेंज होता है. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज स्टडी, देन वी एंटर इनटू द बिजनेस और इन द प्रोफेशन. सो बिजनेस एंड प्रोफेशन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं. उन चेंजेस को नेक्स्ट लेवल से, टू अर्न द लिविंग, रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए अर्निंग करते हैं, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए. यस, हम बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी रूटीन की एक्टिविटीज करते हैं टू अर्न द मनी. सो आफ्टर अर्निंग दिस मनी, नेक्स्ट इज व्हेन वी आर परफॉर्मिंग समथिंग. व्हाट वी आर परफॉर्मिंग? एन एक्टिविटी, कुछ ऐसा काम, like I'm a chartered accountant, so definitely I'm in the practice. I'm doing this practice part to earn the money. So earn the living, performing an activity as a professional chartered accountant, providing service to my client. So that is my activity. And next part is having. Having means the level of education. एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में स्टडी कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ में उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट उसको नहीं पता होता कि उसका फ्यूचर कैसा है. बट वो अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकता है, और डिजाइन करने के लिए उसको अपने पोटेंशियल का पता होना चाहिए.
like the what kind of potential he has. So the next level after the education, skills and training. बहुत सारी ऐसी trainings and skills market में available हैं. वो कॉलेज वाला स्टूडेंट इंग्लिश सीखने जाता है, कंप्यूटर ट्रेनिंग करने जाता है, और बहुत सारे काम. पुराने टाइम की बात करूं तो हम एज अ टाइप राइटर उसमें टाइपिस्ट का काम भी सीखने जाते थे, टाइपिंग सीखने जाते थे बेसिकली. सो अब पिछले 15-20 सालों से यस देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ द कंप्यूटर ट्रेनिंग. सो हम कंप्यूटर ट्रेनिंग में जाते हैं, टैली सीखते हैं. बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर उनको सीखते हैं. वाई? टू अर्न द लिविंग and performing an activity like a professional. But are we professional? Yes or no? So let's see the next one. If we are the professional, so I'm adding another one thing, adhering and the code of conduct. And the last one is ethical standard. इसमें से जो ऊपर के जो कुछ पॉइंट हैं, any person, unliving, performing. So the combination of all is equal to what? A professional person. कोई भी ऐसा इंसान जो जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए कुछ परफॉर्म करता है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और लेवल ऑफ एजुकेशन उसका है, स्किल्स है, ट्रेनिंग है, और उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट एंड द एथिकल स्टैंडर्ड, इन सब चीजों को फॉलो करता है, आफ्टर दैट ही नोन एज ए प्रोफेशनल पर्सन. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द नॉन प्रोफेशनल पर्सन? सो आई विल डिस्कस लेटर. इन द नेक्स्ट स्लाइड आई मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. First, the normal person. The normal person means जिसका level of education इतना नहीं है, बहुत कम पढ़ा लिखा है. A successful person, उसके पास level of education तो है, and maybe they have the training also. And the next one is professional person. So who's the professional person? Who's having a best training or the professional training from the market, from the institute, from the college, or from other professional institute. So from the normal person, how the person can convert himself as a successful person or a professional person. क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो होते हैं वो अपनी जिंदगी को चलाते तो हैं, पढ़ाई लिखाई तो उनकी बहुत कम होती है, बट उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनका कुछ ट्रेनिंग पार्ट होता है, कुछ एजुकेशन लेवल अच्छा होता है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ट्रेनिंग के लेवल को और नेक्स्ट लेवल पे एक्सटीड करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को पहुंचाते हैं, और उसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, और वो बनते हैं प्रोफेशनल पर्सन. सो हाउ ए नॉर्मल पर्सन कैन change himself as a professional person. So like normal person कौन होता है? कोई भी ऐसा इंसान, earn the living performing an activity, that is a normal person. But it does not include having a level of education. Sometimes उसके पास education का level वो नहीं होता जो चाहिए होता है, तो वो एक normal person की तरह इंसान में रह जाता है, normal person की तरह इंसान रहता है. And after that, when he has having the level of education, the next level of the education, like the college life and the other like the certification course, other like the computer course or some other courses. So level of education, then the skills and training, but he become a successful person. Normal person convert as a successful person after adding the level of education and the skills and the training. But how the successful person change himself as a professional person? So he has to add. One is, so what is like the professional person is equal to what? The successful person plus high level of education and the professional skills and the training. So यहाँ तक अभी हमें ये समझ में आया कि लाइफ में तीन तरह के पर्सन होते हैं. वन इज द नॉर्मल पर्सन, अनदर वन इज द सक्सेसफुल पर्सन, एंड द थर्ड वन इज द प्रोफेशनल पर्सन. आज अगर इंसान कोई अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है एज अ स्टूडेंट लेवल पर, तो स्टूडेंट लेवल से स्टार्ट होने के बाद वो फ्यूचर में प्रोफेशनल बनेगा या नहीं बनेगा, तो बहुत सारे हालात उसकी लाइफ में आते हैं, बहुत सारे पड़ाव उसकी लाइफ में आते हैं. कुछ फैमिली के पास पैसा नहीं होता, उनको स्टडी नहीं मिलती, और उनके बच्चों को जब स्टडी नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं एज अ नॉर्मल पर्सन रह जाते हैं. कुछ लोगों के पास इतना नहीं होता पैसा, सुनो, उनके पास ट्रेनिंग आ जाती है, उनके पास लेवल ऑफ एजुकेशन आ जाती है, वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं. समटाइम अ नॉर्मल पर्सन कन्वर्ट इनटू सक्सेसफुल पर्सन लाइक अ बिजनेसमैन. उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, उन्होंने एक शॉप ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, बहुत कुछ ले लिया. मे बी दे हैव द मनी बट दे डोंट हैव अ प्रोफेशनल स्किल्स. सो यहाँ पर उनका लेवल जो है सक्सेसफुल पर्सन की तरह होता है. बट जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, so after having the study, after having the level of education and the super skill from the and the training also from the market, they will become a professional person. So professional person duty is very different
responsibility than the normal person and the successful person. So how you can convert yourself from the noble person to the professional person? So these are the like the steps which we have to follow to become a professional person. लाइफ में कोई भी पर्सन अपनी नॉर्मल लाइफ को चलाता है, बट प्रोफेशनल पर्सन बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोसाइटी में एक अलग पड़ाव में पहुंचना पड़ता है, एक अलग इमेज बनानी पड़ती है. आज हम भी अपने प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट के साथ, बट कहीं पर भी हम सोसाइटी में अगर खड़े होते हैं तो हमारी एक अपनी इमेज बनती है, हमारी एक अपनी इमेज होती है, और हर कोई आके हमें अप्रिशिएट करता है, यस ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, ड्यू टू द पर्सनालिटी, due to the knowledge, due to the level of skills, the communication level, presentation skills, body language, teamwork. So no, there are so many things, there are so many components which are required to become a professional person. So we have to, we have to transform our knowledge, our, the thought process from the normal person to the professional person. Very, very important. So next, the type of professional. As we know, in the market, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं, like a chartered accountant. A chartered accountant, मार्केट में किसी से मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो बेटा, स्टडी कर रहे हो? कहते यस सर कर रहा हूँ. मैं कहा कौन सी स्टडी कर रहे हो? कहते सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ. मैं कहा वेरी गुड, इट्स अ वेरी टफ कोर्स. कहता यस सर. मैं कहा व्हाई यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी? कहता सर आई डोंट वांट टू बी अ लकीर का फकीर, not just accountant. I want to be a chartered accountant. मैंने कहा what is the difference between accountant and a chartered accountant? So उसने बोला कि सर जो accountant होता है वो एक डायरेक्शन में चलता है, उसका सीनियर उसे जैसा कहता है वैसा चलता है, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा प्रोफेशनल पर्सन होता है जिसको किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल पर्सन है. और प्रोफेशनल पर्सन को उसको रूल्स पता है, कंप्लायंसेस पता है, एक्ट पता है, लेटेस्ट अपडेट्स पता है, एवरीथिंग उसके नॉलेज में है, और वो किसी के सहारे के बिना भी चलता है, खुद अपनी सोच से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी डिसीजन मेकिंग से. यस, सो दैट इज व्हाई द वेरी फेमस एरिया, द चार्टर्ड अकाउंटेंट. द नेक्स्ट वन इज advocate. As we know in the market, a chartered accountant can represent the case before the Supreme Court or High Court after getting the special permission from the court. उसे जज साहब से परमिशन लेनी पड़ती है कि सर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट वो भी सिर्फ पर्टिकुलर टेक्निकल इश्यूज के लिए, नॉट फॉर द ऑल केसेस, लाइक द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लाइक द इलीगल एक्टिविटीज के केस में अगर कोई केस चल रहा है, लाइक और देयर आर सो मेनी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होती हैं जिसमें यस एडवोकेट उस केस को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. तो वहां पर एडवोकेट की जो पिक्चर है, जो इमेज है, जो वैल्यू है, बिकॉज लीगल वे में yes, the best person is in the market, that is the advocate. So advocate having the like the power, they can represent to anyone before the Supreme Court or the High Court, and that is why it is possible just because of the professional knowledge. A normal person, when study a lot, after getting so much experience from the senior one, उनके पास ट्रेनिंग लेके, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, प्रोफेशनल जजमेंट के बाद, then he become a professional person, like a chartered accountant or like an advocate. So next one, मार्केट में एक और प्रोफेशनल है जिसे हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी की जो लायबिलिटी, कंपनी सेक्रेटरी का जो एरिया होता है, द वर्किंग स्टाइल जो होता है, वो बेसिकली जो एरिया होता है वो कॉर्पोरेट एक्ट, लाइक द कंपनीज एक्ट 2013. सो कंपनी एक्ट में आने वाली लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट चेंजेस, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, जितने भी लेटेस्ट लीगल वे में जो एक कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के लिए चाहिए होती हैं, उस एरिया में उसे अपने आप को अपडेट करना होता है. सो दैट इज व्हाई द कंपनी सेक्रेटरी इन द मार्केट एज ए प्रोफेशनल पर्सन. सो इट्स ए ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन इन द मार्केट. एंड द फोर्थ वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग ये भी एक ऐसा पर्सन है जो मार्केट में कॉस्ट ऑडिट के असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करता है. अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एक और अपॉर्चुनिटी दी है, दैट इज अ जीएसटी ऑडिटर. नाउ द कॉस्ट अकाउंटेंट कैन बी अ जीएसटी ऑडिटर आल्सो. सो जीएसटी इज इट्स अ इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंसेस. सो ये जो कंप्लायंसेस है, जो मैं बड़े बड़े शब्द आपके सामने जो आपके सामने जो बोल रहा हूँ, तो दीज ऑल आर द बेसिकली द वोकैबुलरी, द like the words which is in the vocabulary of professional person only, not in the
in the knowledge of a normal person or the successful person. Yes, it could be in the successful person, but it will not be in the a normal person. क्योंकि नॉर्मल पर्सन तो अपनी लाइफ को चलाता है, उसे नहीं पता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करना होता है, उसे नहीं पता एडवोकेट बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कितने कंप्लायंसेस, कितने सेक्शन, कितने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करना पड़ता है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए पता नहीं कितनी गाइडलाइंस पढ़नी पड़ती हैं. So why the a professional person is different from the a normal person? The huge difference, the level of study, the level of experience, skills, knowledge, training. Engineer, the technical person. मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल पर्सन मिल जाएंगे. लाइक एक छोटा सा बिजली वाला होता है जिसको हम बिजली वाले को बुलाते हैं घर में कि ये बिजली का बल्ब ठीक कर जा, ये ट्यूब बदल जा, ये पंखा लगा जा, ये कर जा. इंजीनियर को बुलाते हैं कि सर इस घर में ये कमरा यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे लेंटर डाल. बट अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल इंजीनियर की, जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, आप देखिए वो इतना बड़ा मॉल जो बनता है वो दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है, बट उसको स्टार्ट करने के लिए जो पहली ब्रिक जो लगती है, पहली ईंट जो लगती है उसकी फाउंडेशन में, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्रिक. क्योंकि फाउंडेशन अगर अच्छी स्टार्ट नहीं होगी, उसका नींव पत्थर अगर सही जगह से नहीं रखा जाएगा, तो वो बिल्डिंग उस वे में नहीं बनेगी जिस वे में बनाना चाहते हैं. वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए इतने बड़े और 3D की वो ब्लूप्रिंट्स पहले रेडी करते हैं ताकि उन्हें पता रहे कि किस डायरेक्शन में ये कंस्ट्रक्शन चलेगी, किस डायरेक्शन में ये काम होना. सो बेसिकली अ प्रोफेशनल पर्सन बनने के लिए पेशेंस की रिक्वायरमेंट है. तो आपके एफर्ट्स टुवर्ड्स अ गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज जस्ट it could be this will be possible just because of your like the determination, your concentration, focus towards the goal, and your planning part is very important. Next one is a doctor. Doctor again is a good profession. आजकल आपको पता ही है कि जो समाज में जो हालात हो रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है जिसमें ये इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए जिसको सबसे आगे किया गया है, जिसको हमने ये प्रोग्राम बेसिकली डेलीगेट किया है द कोरोना वॉरियर्स के नाम से, राइट. सो द डॉक्टर दे आर डूइंग अ बिग जॉब कि हमें इस हालात से बाहर निकालने के लिए बहुत फ्रंट में रह के वो काम कर रहे हैं. और डॉक्टरी करने के लिए भी कोई छोटी चीज़ नहीं. हमें 5 से 10 मेडिसिन के नाम बड़ी मुश्किल से याद होते हैं. कई बारी फादर बोलते हैं, कई बारी वाइफ बोलती है, कई बारी मदर बोलती है कि बेटा ये दवाई ला दे, बेटा ये इंजेक्शन ला दे, बेटा वो मेरे को शुगर की दवाई ला दे. हमें वो नाम याद नहीं होते. हम उससे व्हाट्सएप में क्या करते हैं, उसकी फोटो खींच के लेके जाते हैं, डॉक्टर की स्लिप की फोटो खींच के लेके जाते हैं और जाके केमिस्ट को दिखाते हैं कि भैया ये दवाई इसमें लिखी हुई है, ये जरा दे देना. और उनकी हैंड राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और वो पता नहीं कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, कितनी बीमारियों के नाम याद रखते हैं, कितनी दवाइयों के उन्हें नाम याद होते हैं, कितने इंजेक्शन के नाम होते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, द बिग रोल व्हाट दे प्ले इन द ऑपरेशन थिएटर. अगर हमारे शरीर पे जरा सा भी घाव हो जाए, हमारे शरीर के हमारे फैमिली में किसी भी पर्सन की अगर वो घाव हो जाए और ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाए, सो वो फील वेरी वेरी बहुत हमारा जो कहते हैं ना, हमें टेंशन हो जाती है, वेरी टेंस हो जाते हैं. और इन द केस ऑफ डॉक्टर्स, ऑपरेशंस में वो मरीज को ठीक करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बीमारी को दूर करते हैं. तो व्हाई? बिकॉज द पेशेंट पार्ट इज देयर, द पेशेंट देयर, efforts is there, determination is there. The next one is scientists. Nowadays what the scientists are doing, they are just creating a vaccine, right? So they are उसमें इन्वेंशन का काम, सर्च का काम, उसमें ये सब चीजें चलती रहती हैं. और आए दिन कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड कर, ये करो वो करो, उसके बाद फाइनली वो एक ऐसी मेडिसिन तैयार करते हैं, यस, जिससे हम इन प्रॉब्लम से दूर निकलें. डिजाइनर, डिजाइनिंग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. प्रोग्रामर, जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन चलती हैं वो कौन डिजाइन करता है? और प्रोग्रामर. इवेंट ऑर्गेनाइजर, जितने बड़े प्रोग्राम आते हैं टीवी पर, हमें जैसे वो दिखते हैं एक्चुअल में वो वैसे बैक साइड पे होते नहीं. बैक साइड द स्टेज जाके अगर हम उसे देखते हैं बेसिकली, तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें मैनेज हो रही होती हैं, बट हमें सिर्फ उतना दिखता है जो कैमरे के सामने चल रहा होता है. जैसे इस समय मैं आपके सामने कैमरे के सामने बैठा हूँ, तो मेरे आसपास क्या हो रहा है ये आपको नहीं पता, राइट. सो इवेंट ऑर्गेनाइजर कुछ इस तरीके का होता है, प्रोग्रामर इस तरीके का होता है. प्रोग्रामर को इस तरीके से डिजाइन करता है कि आप वो एप्लीकेशन चलाते हैं,
इवेंट ऑर्गेनाइजर और इवेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि आपको सिर्फ उतना दिखता है जितना वो दिखाना चाहते हैं. So again, that's an area of a profession. If you want to become a professional person and more, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल हैं मार्केट में जिनके मैं अगर नाम गिनाने लग जाऊंगा, so yes, there is huge list, the number of professional in the market. बट मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड प्रोफेशनल उठाए हैं जिन्होंने एफर्ट्स किए. एफर्ट्स सभी के इक्वल हैं, वो भी एक नॉर्मल पर्सन से प्रोफेशनल की तरफ गए हैं, बट ये प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है. इट्स अ गेम ऑफ ए पेशेंस. मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या कर रहे हो? कहता सर मैं सीए कर रहा हूँ. मैं कहा सीए क्यों कर रहे हो? कहता कि मुझे पता है कि सर मुझे 3 साल मेहनत करनी है, मैं 30 साल मेहनत नहीं करूँगा. मैंने कहा क्यों? कहता यस सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मेरी 3 साल की मेहनत मेरे 30 साल को बचाएगी. तो मैंने उसके दूसरे दोस्त से पूछा, मैंने कहा बेटा आप क्या कर रहे हो? कहता सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कर रहा. मैं क्या क्यों सर, आप क्यों नहीं कर रहे? आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, आपका दोस्त कर रहा है. कहता सर मेरे बस की नहीं है 3 साल मेहनत करना. तो उसके दोस्त ने उसे बोला कि अगर तू 3 साल मेहनत नहीं करेगा तो 30 साल के लिए तैयार हो जाए. सो इन दो बातों में इतना बड़ा डिफरेंस है कि एक इंसान अपनी लाइफ के 30 साल बचाने के लिए 3 साल मेहनत करता है और वो प्रोफेशनल बनता है, और एक दूसरा पर्सन है जो 3 साल को एंजॉय करने के लिए 30 साल मेहनत करने के लिए तैयार है. सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द नॉन प्रोफेशनल पर्सन. लाइक आगे चलने से पहले यहाँ पर मैं आपके बीच में हमारे एक सीनियर पर्सन बहुत खास जिनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा एज ए गेस्ट फॉर द टुडे प्रोग्राम. अगर मैं उनके प्रोफाइल की बात करूं, इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट. ही इज एक्स चेयरमैन ऑफ फरीदाबाद ब्रांच ऑफ ICI and the ex-president of Rotary Club of Faridabad also, and he is a ex-president of FitBar. He is a great teacher also, very knowledgeable, professional, having decent personality, with a great smile. So please, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा. So please welcome CA Tejinder Bhardwaj ji. Bhardwaj sir, are you there sir? Thank you. Yes, I am here. Please welcome sir. Please welcome sir. Thank you very much, sir. But I don't have that courage to speak the quality which you and Govind sir are giving. But you are a great speaker also, sir. Sir, thank you. Sir, if you want to, do you want to say something for the 2 words to the participant? Yes. Please, sir. Please, sir. I was listening very seriously all the words which you were saying, but what I could came to conclude this what the professional and non-professional is. Yes, मुझे जो समझ आया वो ये है कि सर the impression a person put on others by way of his knowledge, by way of his conduct, by way of his behavior, his body language, everything is starting from the expressions from the face to your words. वो सारी चीजें जो एक एक्सप्रेशन दूसरे के ऊपर होता है वो अगर एक पॉजिटिव साइड में है तो शायद वो एक प्रोफेशनल बाय नेचर, प्रोफेशनल बाय लर्निंग इंसान है, जो कि एक नॉन प्रोफेशनल से डिफरेंस है. अगर मेरे वर्ड्स, आपके वर्ड्स आज मुझे इम्पैक्ट करते हैं तो नेचुरली यू आर ए प्रोफेशनल. जैसे डॉक्टर्स के बोलने से हम उनका ही ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके बताए वो खाना खाते हैं, मीन्स वो हमें भी पता है लेकिन हम डॉक्टर से पूछ करके खाते हैं. ये एक बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चीज जो मेरे को फील होती है, that is how you impress others. So that is my expression on the society which impresses the other. That is my dealing as a professional dealing. That professional is perfection. If I am perfect, I try to perfect. There may be some कमियां मेरे अंदर भी, लेकिन I try to be perfect in the society. Then I can be a good professional. दूसरा सर, ये तो एक एजुकेशन पार्ट से आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन हम लोग सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं सर. हमें सोसाइटी सिखाती है. जब हमारे साथ कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको लगता है कि वो कर सकता है, लेकिन जब उसको उसका रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, तिलमिला जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. दिस इज ऑल्सो ए क्वालिटी टू लर्न कि अगर हम दूसरे के साथ जो बिहेवियर करते हैं वो बिहेवियर रिवर्स में मिल सकता है. इट इज ए गिव एंड टेक. लव बिगेट्स लव, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट. सो
वन शुड लर्न हाउ टू लिव विद ऑनर। अगर हम ऑनर के साथ जीना चाहते हैं तो दूसरे को ऑनर देंगे, वो भी सर प्रोफेशनल का एक पार्ट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जगजीत सर। यस सर, यस सर। गीता, गीता में कृष्ण जी ने सारथी बन के अर्जुन को जो भाषण पूरे इतने अध्यायों में, 17 अध्याय कितने उसमें जो सिखाया, वो जो सिखाया वो एक उसको प्रोफेशनल वॉरियर बनाने के लिए सिखाया था। जो गीता में क्योंकि सार उस बताया वक्त, गया। यस, गीता का सार, उस वक्त वो अपनी ड्यूटी भूल करके ये देख रहे थे कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं। लेकिन उस वक्त युग और समाज को जिस परिवर्तन की आवश्यकता थी, वो आवश्यकता उनको वो प्रोफेशनल अप्रोच, उनकी प्रोफेशनल थॉट्स को कन्वर्ट करके जब बनाया, तो अर्जुन, वो 5 पांडवों ने पूरे वर्ल्ड को, मतलब पूरे इसको, कौरवों सहस्त्र सेनाओं को खत्म किया। तो प्रोफेशनल अप्रोच, उस गुरु के बताना, ये दोनों चीजें हमारे बिहेवियर में चेंज होती है। तो द प्रोफेशनलिज्म यही है सर, कि अगर हम अच्छा कंडक्ट, अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं, तो वो एक प्रोफेशनलिज्म है जो मेरा है सर, जो मैं सोचता हूँ। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर बी देयर। तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि गीता के सार में जो कृष्ण जी ने जो अर्जुन को एक लेसन दिया कि लाइफ में हमें प्रोफेशनल बन के रहना है। बट वही बात फिर आती है कि नॉर्मल इंसान के बाद प्रोफेशनल वाली लाइफ में चेंज लाने के लिए बहुत सारी चीजें। इफ यू आर ए प्रोफेशनल देन वी हैव टू यू हैव टू मेंटेन सम स्टैंडर्ड्स, जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड के सोसाइटी में रहते हुए we have to follow the compliances, we have to maintain these standards. So that is why we count it as a professional person, not a normal person but a professional person. So no, as a professional person की लाइफ में बहुत सारी ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के प्रति, कुछ फैमिली के प्रति, द मैक्सिमम क्लाइंट के प्रति, एज ए ऑडिटर, क्योंकि प्रोफेशनल पर्सन मार्केट में काम कर रहा है एज ए ऑडिटर, as a doctor, as an engineer, as a cost accountant, as an advocate, the very good one. So what are that standards? So the very first one is accountability. ये वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो एक प्रोफेशनल पर्सन में होने बहुत जरूरी हैं। होने के साथ साथ उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। So what is accountability? Take the responsibility for their action. What are the actions taken by the professional person? Who is the responsible person? That professional. आज मैं अगर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी रिपोर्ट को साइन करता हूँ, और साइन करने के बाद वो जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाती है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है, तो वहां पर फिर मैं उस रिपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकता। There is my responsibility, I have to answer. I have, whatever information I have given in my report, I have to answer. I have the accountability. I have to answer that, because that is why the responsibility of the professional person is very high. Second one, confidentiality. कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं जो हर प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी डिसीज की इंफॉर्मेशन फैमिली मेंबर्स के सामने तभी वो डिस्क्लोज करता है जब वो रिक्वायर्ड होती है। एक बैंकर्स, प्रोफेशनल बैंकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो अपने क्लाइंट की, एडवोकेट अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूसरे किसी के साथ शेयर नहीं करते। Why? Because there are some standards. There is a code of conduct. And being a professional person, we have to maintain that standard, the confidentiality. The sensitive information of our client, we cannot discuss with the other client. Even in the society, we cannot disclose that information. हम मजाक करते करते, दोस्तों के साथ मजाक करते करते अपने क्लाइंट का नाम लेकर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते। कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट की कोई भी ऐसी उसकी प्राइवेट कोई डिसीज है, कुछ ऐसी उसकी प्रॉब्लम है, पर्सनल डिजीज है, जो वो सिर्फ डॉक्टर से बात करता है। सो डॉक्टर उसे सोसाइटी में अपने दोस्तों को नहीं बताता कि वो ऐसा पर्सन है, उसको ये हो रखा है, उसको ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो उसका मजाक नहीं उठाता। क्यों? बिकॉज वी हैव
some code of ethics and we have to follow. So the major part one is confidentiality. So we have to keep the sensitive information as a private. Fiduciary duty. हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है to prefer clients needs before on. आज मेरे सामने क्लाइंट की कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक इन द केस ऑफ डॉक्टर, लाइक इन द केस ऑफ एडवोकेट. सामने क्लाइंट ऐसा है, किसी का मर्डर हो गया और मर्डर होने के बाद पुलिस किसी ऐसे इनोसेंट पर्सन को ले जाती है जिसके ऊपर सिर्फ शक हुआ है. तो यहाँ पर एडवोकेट की ड्यूटी जो बनती है वो अपने काम छोड़कर उस क्लाइंट को बचाने के लिए, क्योंकि वो इनोसेंट है, वो उसको प्रेफरेंस देगा. एक डॉक्टर अपने घर के काम को छोड़कर पहले पेशेंट को पहले देखता है. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट घर के काम को छोड़कर पहले उस क्लाइंट का काम करता है जहाँ पर उसे कंप्लायंसेस को फॉलो करना. तो और भी ऐसे प्रोफेशनल हैं जो अपने खुद के वर्किंग को छोड़कर, खुद की प्रेफरेंस को इग्नोर कर क्लाइंट को पहले प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज द क्लाइंट, दैट इज द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड. यस, fiduciary duty for the professionals. Honesty, the big one. Always being truthful. सच्चाई, हमेशा सच बोलो. आज एक इंसान सच बोलने वाला एक बार सच बोलता है और झूठ बोलने वाला उस झूठ को छुपाने के लिए भी और कितने झूठ बोलता है. So being a professional person, yes, this is the very important duty of the professional. According to the professional standard, the person must be honest. Honesty के साथ, while reporting anything, while disclosing anything to the government department, while giving or the sharing information with the client, so must be truthful. Dress code. आज हम मार्केट में जाते हैं और बहुत सारे लोगों को हम मार्केट में देखते हैं. खैर आजकल तो शॉपिंग कोई करने नहीं जा रहा, बट अगर हम जैसे ये पीरियड निकल जाता है हम फिर शॉपिंग करने मार्केट में निकलेंगे और हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है. हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं. एक शादी में जाते हैं और शादी में बहुत सारे लोग डिफरेंट ड्रेस कोड में होते हैं. कुछ ऐसे ड्रेस कोड में होते हैं जिसको हम पार्टी वेयर्स बोलते हैं, कुछ ऐसे ड्रेस कोड में होते हैं जिसको हम प्रोफेशनल ड्रेस कोड बोलते हैं, लाइक कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, सोबर कपड़े, बड़ी सोबर सी ड्रेस है, बड़े लाइट कलर के उसने कपड़े पहने हैं, डार्क कलर का उसने ट्राउजर पहना है, डार्क कलर का उसने कोट पहना है, और अगर पंजाबी है तो डेफिनेटली मैचिंग टर्बन बांधी हुई है. बट एक ऐसा पर्सन है जिसने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसका ड्रेस कोड ऐसा है जो शाइन कर रहा है, लाइक उसके ऊपर कुछ ऐसे बेसिकली एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रखी है जो शाइन कर रही है, लाइट के नीचे वो शाइन कर रहा है. सो ऐसा ड्रेस कोड प्रोफेशनल का नहीं होता. प्रोफेशनल का ड्रेस कोड जो होता है सोबर होता है, नीट एंड क्लीन होता है, लाइट कलर्स होते हैं फॉर द शर्ट पर्पस, बट फॉर द कोट एंड द ट्राउजर एंड द टर्बन, सो डेफिनेटली द मैचिंग और कोट एंड द ट्राउजर मस्ट बी इन द डार्क कलर, लाइक द ब्लैक, लाइक द ब्लू, लाइक द डार्क, बट नॉट द लाइट. बट शादी में जाके जब आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, किसी को देखकर ऐसा लगता है यार कैसे बड़ा ही फनी टाइप का बनता है, उसके कपड़े देखकर लगता है. और किसी ऐसे सोबर कपड़े ड्रेस कोड वाले को हम देखते हैं, कहते हैं यार बड़ा इंटेलिजेंट लगता है, बड़ा पढ़ा लिखा लगता है किसी अच्छी कंपनी में काम करता है, लगता है हो सकता है बैंक में काम करता है. जो प्रोफेशनल ड्रेस कोड में लगता है उनका तो पहले ही अपीयरेंस ये बता देती है कि लगता है ये किसी अच्छे एरिया में काम करता है, हमें तो लगता है ये बैंकर ही है, बैंक में जॉब करता है, राइट. सो कहते हैं कि जैसा देश वैसा वेश. जो हमारा वेश होता है वो इस तरीके का दिखता है, वो हमारा नेचर बताता है. और हमारे सीनियर कहते थे, जब मैं अपने सीनियर्स की बातें सुनता था, कहते जिनकी सोच अच्छी होती है उनकी सोच उनके कपड़ों पे दिखती है, जिनकी सोच अच्छी नहीं होती उनके कपड़े बता देते हैं कि इनकी सोच अच्छी नहीं. सो ऑलवेज ट्राई टू ड्रेस प्रॉपरली सो दैट आप भी प्रोफेशनल लगें. बट अगेन ड्रेस ही इंपॉर्टेंट नहीं है, द नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तजिंदर सर बता रहे थे, बिहेवियर की बात करते थे. प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर, एटिकेट्स, रिस्पेक्ट, थैंक्स, होता है. ऑफिस में मेरे यहाँ क्लाइंट आता है तो कई बार क्लाइंट जैसे ही जाता है उसके लिए हम दरवाज़ा ओपन कर देते हैं कि आइए सर पहले आप आइए. उसको सी ऑफ करने जाते हैं, उसके साथ जब वर्डिंग्स बोलते हैं, जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो थैंक्स, ग्रेट, बहुत सारी ऐसे वर्डिंग हमारे जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है
वो हमारे प्रोफेशनल बिहेवियर को बताते हैं। बट अगर आप किसी को तू तड़ाक करके बोलते हैं तो दैट इज नॉट द प्रोफेशनल लैंग्वेज। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज अ सॉफ्ट लैंग्वेज, रिस्पेक्टफुल वाली लैंग्वेज, so that will be counted as a professional behavior. Integrity, honest with the strong moral principle. Integrity means, integrity एक ऐसा शब्द है जहां पर एक प्रोफेशनल पर्सन को रिपोर्टिंग के टाइम पे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के टाइम पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, उससे जो सही इंफॉर्मेशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, द मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ऑनेस्ट विद अ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर आप इंफॉर्मेशन के साथ कोई छेड़खानी करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, आप उसकी इंटीग्रिटी खत्म कर देते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक कंपनी की बैलेंस शीट को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया और उसने उसकी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो इंफॉर्मेशन मिसलीड कर रही है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर उस इंफॉर्मेशन को समझने के बाद ये सोचता है कि इस कंपनी में अगर मैं पैसा लगाता हूँ तो डेफिनेटली मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट होगा, इस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। और वो इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा लगाता है और बाद में पता चलता है कि वो कंपनी के शेयर बिल्कुल डाउन आ गए और वो उसे बहुत बड़ा लॉस हो गया इन्वेस्टर को। तो यहाँ पर उस ऐसे प्रोफेशनल पर्सन लाइक द चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक द अदर प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, देयर आर सम अदर प्रोफेशनल आल्सो, द ड्यूटी ऑफ दैट प्रोफेशनल बी वो किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। देयर मस्ट बी इंटीग्रिटी, द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द एविडेंस। द नेक्स्ट वन, लॉयल्टी, कमिटेड टू देयर प्रोफेशन। आज अगर मैं किसी पे प्रोफेशनल से बात करता हूं तो वो कई बार अपने आप को कोस रहा होता है कि सर हम इस प्रोफेशन में आ गए, हम इस प्रोफेशन में तो आ गए बट हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास क्लाइंट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। कहता सर आपके पास कैसे क्लाइंट है? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या सर आप अपने प्रोफेशन के लिए लॉयल हैं? क्या आपके अंदर लॉयल्टी है, द कमिटेड टू देयर प्रोफेशन? क्या आप अपने प्रोफेशन के लिए वाकई इतने लॉयल्टी रखते हैं? और वो कहता है सर बिल्कुल सर, मैंने मेहनत की है सर, मैं मेहनत करके बनाऊं। मैं कहता हूँ नहीं सर, ऑलवेज फेथ ऑन योर प्रोफेशन, वर्क लाइक ए प्रोफेशनल पर्सन, प्लानिंग करो, लॉयल रहो अपने प्रोफेशन के प्रति। सो डेफिनेटली प्रोफेशन आपको तभी देगा जब आप प्रोफेशन के लिए काम करेंगे, जब आप अपने लिए लॉयल होंगे। सो अपने आप को डेवलप करने के लिए प्रोफेशनल पर्सन बनने के बाद सक्सेसफुल पर्सन बन गए और प्रोफेशनल नहीं बन पाए, प्रोफेशनल बन गए बट सक्सेसफुल नहीं बन पाए, so there is a point, a very important point is the loyalty. So we have to apply understanding with the client. कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई हमारा क्लाइंट, डॉक्टर के सामने उसका पेशेंट, वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर आता है और हम उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, बट हम उनकी प्रॉब्लम को इस तरीके से नहीं सुनते जिस तरीके से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में एक बहुत यूनिक एरिया है। लॉ को समझने के लिए कहते हैं इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्लाइंट जिसकी प्रॉब्लम कुछ और है और वो बता रहा है बट वो बता नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है। बट सामने जो प्रोफेशनल पर्सन बैठा है उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर सही नहीं है तो वो क्लाइंट को वो सर्विस नहीं दे सकता जो सर्विस क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट जो है उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी डिपेंड है कि हम प्रोफेशनल बन गए बट स्टिल वी आर नॉट सक्सेसफुल। सो माय रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रोफेशनल, यस, at this point is very very important, the understanding. We have to understand the client first, then the start to provide the service to that client. The next one is objectivity, not influenced by biases. Biases means partiality, पक्षपात जिसे हम बोलते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करूं जो प्रोफेशनल पर्सन पे लगते हैं तो उसमें वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिविटी, सो नॉट इन्फ्लुएंस बाय बायसेस। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए ऑब्जेक्टिविटी भूल जाते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट में आ जाते हैं और गलत रिपोर्टिंग करते हैं। गलत रिपोर्टिंग करते ही
अगर वो प्रोफेशनल पर्सन फ्यूचर में इंस्टीट्यूट के द्वारा, डिसिप्लिनरी कमेटी के द्वारा या कोर्ट के द्वारा कहीं पर भी उसकी वो ऑब्जेक्टिविटी में जहाँ पर उसने कुछ पार्शियलिटी की है, कुछ बायस रिपोर्ट दिए हैं, राइट, सो उसको गिल्टी करार दिया जाता है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है कि आपने अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, you have not complied with the code of ethics. The code of ethics, every professional having their code of ethics according to their institute, according to their organization. Those are maintaining that code of ethics. Yes, they are designing for the professional, and the professional has to comply with that code of ethics. So objectivity, the next one is respect, admiring people for the qualities. कुछ प्रोफेशनल को मैंने ऐसा भी देखा गया, कुछ ऐसे प्रोफेशनल जो अपने जूनियर्स को कभी भी एडमायर नहीं करते उनके अच्छी क्वालिटी के लिए, उनके अच्छे काम के लिए। सो जिससे होता क्या है, उनका वो जो लेवल ऑफ वर्किंग है वो कुछ समय तक तो उतना ही रहता जितना है, और कुछ समय के बाद उतना भी नहीं रहता जितना था। सो ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट टू द अदर्स, एडमायर द पीपल फॉर देयर क्वालिटीज, बिकॉज उनकी क्वालिटी को जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो एज ए टीम काम करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल पर्सन कभी टीम मेंबर की तरह काम करते हैं और कभी एज अ टीम प्लेयर काम करते हैं, एज अ लीडर काम करते हैं और एज अ टीम प्लेयर काम करते हैं। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशनल पर्सन। सो ऑलवेज एडमायर द पीपल क्वालिटीज। ट्रांसपेरेंसी, क्लाइंट के साथ, पेशेंट के साथ ऑलवेज रिवीलिंग द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का खुलासा नहीं किया, छुपाया, so again there is no transparency. So this is the duty of the professional. So one of the a standard for the professional, so no, the transparency part must be there. So always provide the information to your client, the relevant information, जिसके बेसिस पर वो आपके ऊपर विश्वास करे। जैसे अभी तेजिंदर सर ने बताया कि डॉक्टर्स, हम उसी डॉक्टर्स को ऊपर फेथ करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को हमारे तरीके से बताता है, हमें समझाता है कि हमारे लिए क्या सही है, ये इलाज अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप करवाएं। और वो हमें समझाता है कि अगर आप इसको नहीं करवाते तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो माइट बी इन द फ्यूचर देयर कुड बी अ बिग प्रॉब्लम। सो हम उसकी बात को समझते हैं डॉक्टर की, और हम अपना इलाज स्टार्ट करवाते हैं और अपनी लाइफ को सेव करते हैं। नॉट सिर्फ अपनी लाइफ को सेव करते हैं, इवन ऑल द फैमिली मेंबर जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम उनकी लाइफ को भी सेव करते हैं। ऐसे ही प्रोफेशनल पर्सन जो दूसरे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, क्योंकि उनके ट्रांसपेरेंसी से जब क्लाइंट को उसकी इंफॉर्मेशन का पता है तो कल को वो डिसीजन लेता है तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, नॉट द प्रोफेशनल पर्सन, क्योंकि प्रोफेशनल पर्सन ने अपने क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंसी रखी थी। द नेक्स्ट वन इज फॉर्मल स्पीच। हम किसी भी प्रोग्राम में जाएं, किसी सेमिनार में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, किसी बच्चों के स्कूल के फंक्शन में जाएं, पीटीएम में जाते हैं, हम स्कूल में बच्चों के पीटीएम में जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, रिलेटिव से मिलते हैं, किसी बड़ी ऑफिस मीटिंग में जाते हैं, बड़े बड़ी डिग्निटी से मिलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर से मिलते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मिलते हैं, जज से मिलते हैं, यू नो, बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलते हैं। कहते हैं कि सामने वाला पर्सन जब बोलता है तो पता लग जाता है वो कौन से गांव से बिलोंग करता है। सो दैट इज व्हाई द फॉर्मल स्पीच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अवॉइड अनप्रोफेशनल लैंग्वेज। मेरे को याद है कि एक ऐसा प्रोफेशनल, मैं यहाँ पे यू नो उस प्रोफेशनल पर्सन का नाम तो नहीं लूंगा, बट हाँ, उस पर्सन ने अपने क्लाइंट के साथ कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज की थी जिसकी वजह से उसके उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने उसके अगेंस्ट केस किया, उसको प्रोफेशन से बाहर किया 5 साल के लिए। क्यों? क्योंकि उसने फॉर्मल स्पीच, फॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं की, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की उसने क्लाइंट के किसी फैमिली मेंबर के साथ। So this is the professional misconduct against the code of ethics. So always try to speak in formal language. Professional competency, require updated knowledge. So knowledge is very important. आज मार्केट में ऐसे भी प्रोफेशनल हैं जो कहते हैं अपने आप को प्रोफेशनल है, बट दे आर नॉट अपडेटेड
And without updation, they are only a professional, but they are not actually professional. If you want to become a actually professional, so must be update yourself, update the knowledge, update yourself according to the latest amendments in the act, the latest notification, understand the notification, latest clarification from the institute, from the government department, so that कोड ऑफ एथिक्स में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको आप फुलफिल कर सकें. नेक्स्ट, प्रोडक्टिव मीटिंग्स. बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में देखा गया है, कंपनीज में मीटिंग होती हैं, कई इंस्टीट्यूशन पे भी देखा गया है, कुछ ऐसे और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे देखा गया है कि उस कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उस मीटिंग में बैठते हैं, बट उस मीटिंग को सिर्फ मीटिंग की तरह लेते हैं, उसको प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट नहीं करते. वो कहीं पर भी मीटिंग में कुछ ऐसा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं देते जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में काम करे. तो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि ऑलवेज ट्राई टू कंट्रीब्यूट योर एफर्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ आपकी ग्रोथ भी होगी, आपका पैकेज भी बढ़ेगा, आपका जॉब प्रोफाइल भी बढ़ेगा. And definitely a productive meetings, not the just a productive meetings, even your future is there. So contribute to the growth of the organization and make the meeting a productive meeting. Effective communication, very, very important and sensitive area. Communication is a way when one person share the information to the other person. We know that this is communication, when we share our thoughts, our idea to the other person. But what is effective communication? When the other person understands that material, that content in the same manner as the sender want to send to the receiver. That is effective communication. Well, but always try to convert your effective communication in the win-win situation, in the winning communication. So when you communicate with your client, when you communicate with your customer, when you communicate with your patient, so always try to speak in a way so that your communication will convert into effective communication, and not just effective communication, but the win-win situation must be there. Time management, know the value of the time. कहते हैं जिसने समय की वैल्यू को समझा, उसे समय ने बना दिया, और जिसने समय की वैल्यू को नहीं समझा, उसे समय ने ही गिरा दिया. सो हमें समय की वैल्यू को समझना चाहिए. हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं. कुछ लोग 24 घंटे को 6 घंटों में कन्वर्ट करते हैं और कुछ 24 घंटों को 48 घंटों में कन्वर्ट करते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू मल्टीप्लाई विद द play with the time actually. So you can convert your 24 hours into 48 hours. It's totally depend upon you, how you manage your time. Time is a वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लाइफ में पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर एक समय ही है जो नहीं खरीद सकते. जब हम महाभारत देखते थे तो महाभारत में स्टार्टिंग में ही आता था कि मैं समय हूँ. मैंने सबको देखा है, तो समय ने सबको देखा है, पर सभी ने समय को पूरे तरीके से नहीं देखा. तो बहुत से युग आए. तो एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. द कॉर्पोरेट गोल. सो रोल टूवर्ड्स द अचीव गोल्स. द गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. द कॉर्पोरेट गोल्स. When you achieve the corporate goals, actually you achieve your goals. कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के जो प्रोफेशनल होते हैं, बट वो कॉर्पोरेट गोल्स की तरफ ना ध्यान देकर अपने पर्सनल गोल्स की बात करते हैं, अपने पर्सनल गोल्स की तरफ उसको अचीव करने में लगे रहते हैं. और जिससे होता क्या है, फ्यूचर में वो पर्सन, वो प्रोफेशनल उस कंपनी में ही नहीं होते. सो आपके जो एफर्ट्स हैं, दैट मस्ट बी टुवर्ड्स द अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कॉर्पोरेट गोल. टीम वर्क. Leader come player. Sometimes work like a leader, sometimes as a player. Like a Mahendra Singh Dhoni, like a Virat Kohli. Commitment, dedication and positive action. Dedication means आपकी involvement. कोई भी काम करते हैं, हमने प्रोफेशनल स्टडी की है, हमारी इन्वॉल्वमेंट रही है, so that is why हमने उस प्रोफेशनल स्टडी को कंप्लीट किया. So that is why your commitment must be there with the dedication and the positive actions. So self-belief, very important
point is believe in yourself. If you believe in yourself, आपकी सारी प्लानिंग आने वाले समय में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी अचीवमेंट में. इफ यू डोंट बिलीव योरसेल्फ, आप जितना मर्जी प्लान कर लें, आपके प्लानिंग ना तो कभी एग्जीक्यूट होगी, और जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी वो आपके टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी. तो बिलीव इन योरसेल्फ, इसके ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हैं. सिस्टमैटिक अप्रोच, हैविंग ए सिस्टम एवरीवेयर. मुझे एक प्रोफेशनल ने पूछा कि सर हम सर्विस तो देते हैं बट अपने क्लाइंट से फीस नहीं ले पाते. तो मैंने कहा सर डू यू हैव सिस्टम इन योर ऑफिस? कहता सिस्टम सर वो क्या है? हमारे ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, हमारे ऑफिस में बहुत सारे प्रिंटर लगे हुए हैं, हमारा स्टाफ काम करता है. मैं कहा नहीं सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम विच यू आर मेंटेनिंग इन योर ऑफिस. सो डू यू हैव द सिस्टम इन योर ऑफिस? कहता सर किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? मैंने कहा क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है अपने ऑफिस में कि आप अपने क्लाइंट को सर्विस देने के बाद क्या आप बिल रेज करते हैं टाइमली? वो कहता सर जब जरूरत होती तब पैसे ले लेते हैं. तो मैंने उसे बोला नहीं सर, सर्विस कंप्लीट होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट भी कहता है कि 30 दिन में आपको बिल रेज करना है. सो आप भी अपना एक सिस्टम बनाएं कि आप उसको 10 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर उसका बिल रेज करें, सो दैट आप पेमेंट का फॉलो अप कर सकें. सो यू मस्ट हैव अ सिस्टम इन योर ऑफिस. दैट इज व्हाई आफ्टर दैट यू विल काउंटेड एज अ प्रोफेशनल पर्सन. द प्लानिंग. So this is my last slide. I will take 1 or 2 minutes more. So planning, utilize resources, not use. कहते हैं यूज और यूटिलाइजेशन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट फर्क होता है तो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल पर्सन का. एक पर्सन ऐसा है जो दूसरे की संपत्ति को यूटिलाइज नहीं करता, यूज करता है, और वहाँ पर एक प्रोफेशनल पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर कर उसको मल्टीप्लाई करता है, ना कि यूटिलाइज यूज कर कर उसको रिड्यूस करता है. सो देयर इज अ डिफरेंस. सो नेटवर्क, मस्ट हैव द प्रोफेशनल नेटवर्क. आज हमारा प्रोफेशन है या किसी और का प्रोफेशन है, yes we can multiply ourselves, like we can multiply our client, we can multiply our the business or the profession just because of our network. When you have the network of a professional or the businessman, we can multiply. Ambitious, a strong desire to succeed. अगर आपके पास ambitious हैं, आपके ambitious अच्छे हैं, आपकी डिजायर अच्छी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आपका बिलीव इन योरसेल्फ है, and you have a good planning, so definitely you will succeed. Persistent, so fact of continuing in an opinion or resolution. इसकी अगर मैं बात करूं तो continue approach. एक बूंद भी अगर एक जगह पर बार बार पानी की बूंद वो पड़ती रहती है तो उस पत्थर पे भी निशान छोड़ जाती है. तो किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आप कंटिन्यू अप्रोच, पैशन के साथ, पेशेंस के साथ, पैशन के साथ, प्लानिंग के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं, सो डेफिनेटली यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन. एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म इन ए कंस्ट्रक्टिव वे, इंप्रूवमेंट के पर्पज से, पॉजिटिव वे में, कुछ चेंज करने के लिए, नॉट इन ए नेगेटिव वे. सो एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, क्योंकि कहते हैं कि जो आपको क्रिटिसाइज करता है वही आपसे आपका सबसे अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको सच तो बताता है कि आपके अंदर ये कमी है. और कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम पूछते हैं यार इसमें कोई कमी तो नहीं, वो सच नहीं बताते, आपको अप्रिशिएट तो कर देते हैं बट आपकी कमी से आपको रूबरू नहीं कराते, जिसकी वजह से आप वहीं के वहीं रह जाते हैं. सो ऑलवेज एक्सेप्ट द पर्सन जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं. एडेप्टेबिलिटी, सो वेलकमिंग चेंजेस विद अ स्माइल. अगर आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी लाइफ में चेंज कर सकता है बेटरमेंट के लिए, सो ऑलवेज एक्सेप्ट देम. सो ऑलवेज ट्राई टू adaptability, yes, change with a smile. Perspective, having quality to understand the point of view of the others. दूसरों को भी समझने की कोशिश करें. कल भी ऊर्जा सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी जब वो एक बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे थे कि उस बच्चे को तो समझो कि वो क्या कहना चाहता है. हम दूसरों को अगर सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पीपल ऑल्सो. मे बी वी कैन चेंज आवरसेल्फ विद द लिसनिंग, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन. ओपन-माइंडेड पर्सन, अ नैरो-माइंडेड पर्सन कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि उसकी सोच बहुत छोटी होती है, बहुत छोटा सोचता है. बट ओपन माइंडेड पर्सन बहुत बड़ा सोचता है, वो अपना फायदा नहीं सोचता, वो कहता है दूसरों की भलाई में भी हमारी भलाई है. तो सबके अंदर सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है. द पर्सन मस्ट बी ओपन माइंडेड पर्सन, अकाउंटेड एज अ प्रोफेशनल पर्सन.
a virtual environment ready with the current situation. We are facing the current situation. We are working from the home. हम घर से ऑफिस चला रहे हैं, बट वो ऑफिस वाली जो फीलिंग है वो नहीं आ रही. So you must have the virtual environment with you. So this was the last point. So my humble request to the every participant: are you professional? Yes or no? But try to become a professional person if you want to enhance your value in the market. So try to become a professional person. So this is the last slide. सबका धन्यवाद करता हूँ. All the members of the Rotary Club, Pitt Bar Association, and guest of the day Tajinder Bhardwaj sir, our mentors, Leaders Avenue, and all the dear participants. कल हमारे साथ होंगे गोविंद मिश्रा जी. वेरी स्माइलिंग फेस, वेरी हुनर वाले, एक ऐसे वक्ता जिनको पता है कि व्हाट इज आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. तो कल हमारे साथ होंगे. उनका टॉपिक है द की टू इनसाइट. तो बहुत कुछ सीखना है गोविंद जी से. मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं भी सुनूंगा गोविंद जी को. सो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया. थैंक यू वेरी मच. सो ओवर टू केसवानी सर. थैंक यू वेरी मच सर. ओके, मुझे आज ये कहते हुए बड़ा वो हो रहा है, वो यानी खुशी, गर्व. जी हाँ, एब्सोल्यूट गर्व. आज सीए जगजीत सिंह जैक्स को एक मार्गदर्शक के रूप में देख के, एक रोल मॉडल के रूप में देख के मुझे वाकई बहुत गर्व हुआ. बिकॉज इनको मैंने आज से 10-12 साल पहले क्लास में एज ए स्टूडेंट देखा था. तो मेरे ख्याल से ये जो जर्नी रही इनकी, फ्रॉम बीइंग ए विद्यार्थी या स्टूडेंट से लेके आज रोल मॉडल तक, तो ये अपने आप में बहुत ही दर्शनीय रही. जगजीत सिंह, लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू वेरी मच सर. एब्सोल्युटली. और आज जो उन्होंने जो ये टॉपिक लिया था, यकीन मानिए ये हम सब के दिल के बहुत ही नजदीक है. बिकॉज बीइंग अ प्रोफेशनल कौन नहीं चाहता. सो आज ठीक हमारे इस रीसेट जिंदगी का एक मिडवे पॉइंट था, जहां पे आपने अभी तक हमारे 3 स्टॉलवर्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम सीए अमित जी, आहूजा जी और आज जैक्स सर को आपने सुना. और यकीन मानिए अभी तो डायमंड्स और बाकी हैं, अभी तो डायमंड्स और बाकी हैं. तो दिल थामे रहिएगा. बिकॉज सोमवार यानी मंडे यानी 8 जून को शाम को कुछ इसी समय 6 बजे के समय एक और धमाकेदार एब्सोल्युटली वक्तवा हमारे बीच में होंगे. और जिनको हम सब मोस्टली सब जानते हैं, हमारे गोविंद मिश्रा जी. इनके बारे में मैं क्या कहूं. कई लोगों का कहना है, और शायद मेरा भी, एक जमाने में होते थे हमारे अलेक्जेंडर द ग्रेट. जी हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट. और उनके बाद इनका ही नाम आता है, हमारे गोविंद मिश्रा जी द ग्रेट. जनाब, इनकी जो बातें हैं, इनके जो संस्कृत के श्लोक हैं, इनकी जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो अदा है, या मैं कहूँगा अंदाज है, वो अपने आप में वाकई बहुत दर्शनीय है. वाकई बहुत दर्शनीय है. वो कहते हैं ना कि सीइंग इज बिलीविंग. तो जरूर विटनेस कीजिएगा, भूलिएगा मत. कोई भी और अपॉइंटमेंट्स हो उसको जरूर पहले निभा लीजिएगा, मगर 6 बजे का समय शाम का जरूर याद रखिएगा. बिकॉज यू हैव अ डेट विद आवर ग्रेट स्पीकर टू फॉलो, गोविंद मिश्रा, एंड ही वुड बी स्पीकिंग ऑन की टू इनसाइट्स. एक ऐसा विषय जो हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है. और मुझे बताया गया है कंफर्म सूत्रों से कि गोविंद जी ने बड़ी धुआंधार तैयारी करी है इसके लिए, जैसे आज हमारे जगजीत जी ने भी करी थी. सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ग्रेट शो. सो ओवर टू सीए जतिन जी.